Hello everyone. In this video we are going to learn about bubble sort. Right. So just I'm going to take some elements of an array and sort these using bubble sort. Right. So just see what is the procedure to sort elements, and after completing the process of sorting I will write the corresponding code, right, for bubble sort. So just try to understand. Just I'm going to write this one. These are the array elements. Now I'm going to sort these array elements. So what is the procedure to sort these elements? Simple. Just take this array elements in vertical order. Now I'm going to take this one. Now this is 3, 5, 8, 6, 2, 1. Now, so these are the 6 elements I am taking in vertical order, right? Now, so this is pass 1. I am going to use this pass 1. Now I am going to compare these two elements, 3 to 5. 3 to 5 से हम compare करने जा रहे हैं. If this first element is smaller than this element, then no swapping. If first element is larger than this element, then I will swap this one. Then 3 is smaller than this element, already sorted. Yes, remember, I am doing sorting. The sorting means I am going to use non-decreasing order. Means we are going to use 3, 5. Already 3 is there. 3 is already smaller than 5. So why should I swap this? ठीक है, तो 3 to 5 नो स्वैपिंग, तो हम ऐसे लिख देंगे 3 to 5, 3, 5, 8, 6, 2, 1. Now I'm going to compare this 5 to 8. 5 का 8 से कंपेयर करने जा रहा हूँ. Now see, 5 is already smaller than 8, so no swapping is required. तो हम ऐसे ही लिख दीजिएगा 3, 5, 8, 6, 2, 1. Now I'm going to compare this 8 to 6. Now listen carefully. 8 to 6. Now 8 is greater than 6. If 8 is greater than 6, तो हमें definitely इन दोनों में property को solve करनी पड़ेगी. और you know bubble property, that's I think bubble में क्या होता है, bubble की bubble की property क्या होती है? In case of water bubble, water bubble is the lightest particle, you can say, right? तो light means light और heavy. ये मेरा 6 light है और 8 heavy है as compared to 6 one. तो ये क्या होगा, ये 6 ऊपर आ जाएगा. जैसे बबल होता है ना, वाटर बबल, ये ऊपर आ जाता है. उसी तरह ये 6 भी ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा. मींस स्वैपिंग हो जाएगी. तो जस्ट आई एम गोइंग टू स्वैप दिस वन. तो इसमें हम बाकी को ऐसे ही लिखेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने 3 ऐसे लिख दिया, 5 ऐसे लिख दिया. अब मैं 6 को ऊपर और 8 को नीचे कर दूंगा. 6 और 8 ऐसे हो गया और बाकी जो नंबर है एज इट इज ऐसे लिख दूंगा. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज, अब देखिएगा, मीन्स फर्स्ट ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स. पहले मैं 0 1 का कंपेयर किया, फिर 1 2 का कंपेयर किया, फिर 2 3 से कंपेयर किया, फिर अब 3 4 का कंपेयर करूंगा 3 4 से. नाउ दिस इज 8 एंड दिस इज 2. 8 is greater than 2. स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड. अब स्वैपिंग क्या होगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर. See, so this is 3, this is 5, this is 6, and now I'm going to swap this one. This is 2 and this is 8, and 1 तो ऐसे ही रहेगा. Now अब मैं इंडेक्स किसका, इस और इस इंडेक्स का कंपेयर करूंगा. मींस इंडेक्स 4 एंड 5 का कंपेयर करूंगा. तो 4 एंड 5 का कंपेयर करते समय क्या होगा, स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 1, तो स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड.
but listen carefully. How many elements in this array? 1 2 3 4 5 6 elements are there. Now listen carefully. In pass 1, this is pass 1, this is pass 1. In pass 1 there must be 5 column, 5 iterations. Inner iteration I will discuss at the time of coding. बट अगर मेरे पास 6 एलिमेंट हैं, तो अगर n एलिमेंट है तो फर्स्ट पास में n-1 कॉलम दिखने चाहिए आपको. वंस अगेन, अगर मेरे पास 6 एलिमेंट है तो फर्स्ट पास में 5 कॉलम दिखने चाहिए. फर्स्ट पास में 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, और लास्ट में जब 1 होगा, 1 कॉलम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में देखूंगा तो तुरंत सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाएगा हमें. गॉट माय पॉइंट? नाउ लिसन केयरफुली. तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो फर्स्ट पास में 5 कॉलम. नाउ लिसन, अब यहाँ पे जो स्वैपिंग तो होगी, 8 1 की स्वैपिंग तो होगी, 1 8 होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू रूल हमें यहाँ लिखना चाहिए, बट वी शुड नॉट राइट हियर. ठीक, हम क्या करेंगे, हम इस वाले आउटपुट को हम नेक्स्ट पास में लिखते हैं, क्योंकि देयर आर 6 एलिमेंट एंड फर्स्ट पास में 5 कॉलम होने चाहिए, 5 इनर इटरेशन चलने चाहिए. ठीक, दिस इज द रूल ऑफ बबल सॉर्ट, नथिंग एल्स. अब मैं इसका आउटपुट यहां लिखने जा रहा हूं. सिंपल देखिएगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, जो आउटपुट होगा, वो इस पास में आ जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री फुल हो चुकी है. 6 एलिमेंट था तो 5 कॉलम फुल हो चुके हैं, तो नेक्स्ट वाले इसमें आएगा. तो वैसे हम क्या लिखूं यहाँ पे, 3 5 6 2 8 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 8. वेरी गुड, 1 8. नाउ this is pass 2 started, pass 2 started, right? अब देखिए, again start same, 3 to 5, compare 3 to 5. Okay, see, actually this bubble sort and selection sort, I think 90% logic and code is common. Selection bubble का 90% logic and code is common. तो try to understand first bubble sort, उसके बाद logic selection भी clear हो जाएगा. तो just we are going to select in that case. हाँ, तो 3 5 को हम compare करेंगे 3 5 से. तो 3 is already smaller than 5, तो no swapping is required. हम ऐसे ही लिख देंगे, right? तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 2 1 and 8. Now I'm going to index 0 1 2 3 4 5. Now I'm going to compare with index 1 to 2 5 6. 5 is already smaller than 6, no swapping is required. हम ऐसे ही करते हैं. Now try to understand. 3 5 6 2 1 8. Now I'm going to compare 2 with 6, 6 with 2, right? See, 6 is greater than 2, swapping is required. Now I'm going to this, right? This one, that's very easy. 3 5 and 2 will here and 6 will come here and 1 8, right? That's very easy. Just this is the process, just like a game you can say. तो इस प्रोसेस को यदि समझ में आ जाएगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग कोडिंग भी समझ में आ जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ अब हम कंपेयर किसका करेंगे, इसका और इसका. इसको अच्छा, बबल सॉर्ट में 2 थिंग्स आते हैं. फर्स्ट वन इज कंपैरिजन एंड दूसरा स्वैपिंग. हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपैरिजन आर देयर, हाउ मेनी स्वैपिंग आर देयर. ठीक है, इस वाले प्रोसेस को देख लेंगे और इसकी कोडिंग कर लेंगे. तो एक मैं शॉर्टकट डिस्कस करूंगा आपसे. शॉर्टकट ये होगा कि कैसे हम नंबर ऑफ स्वैपिंग फाइंड करते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिशंस. क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड इन बबल सॉर्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स. 10 एलिमेंट दे देगा और पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ स्वैपिंग कितने होंगे. तो आप 1 by 1 ऐसे प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे, तो दैट विल टेक मोर टाइम. ठीक है, तो we will discuss later. We will discuss in this video what is the shortcut to find the number of swapping required. Now listen. तो now तो ये फर्स्ट पास में 5 कॉलम हो गए, सेकंड पास में 4 कॉलम हो जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट पास में 3 कॉलम, नेक्स्ट में 2, उसके बाद ऐसे चलते जाएंगे. नाउ अब इसमें ये बताइएगा, इसमें स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड. स्वैपिंग है, बट इसका जो आउटपुट यहाँ ना लिख के हम नेक्स्ट पास में लिखेंगे, क्योंकि 5 कॉलम हो चुके हैं, 4 कॉलम हो चुके हैं. अब मेरे पास इस कॉलम में आना चाहिए. अब मैं लिखूंगा इसका आउटपुट जो आएगा,
ऐसे लिखूंगा, ठीक है, 3 5 2 1 6, इसको 1 6, तो 1 6 and 8, 1 6 and 8. Now again compare with this one, 3 to 5 already sorted, no problem. 3 5 2 1 6 8. Now I'm going to compare 5 with 2, 5 2. So 5 is already 5 is, हाँ 5 is greater than 2, 5 is greater than 2, swapping is required. तो क्योंकि बबल है, सपोज करिए ये वाटर बबल है और इस वाटर बबल को हमें सॉर्टिंग करें तो ये तुरंत ऊपर आ जाएगा, जैसे उसके जिस इस इंडेक्स के ऊपर वाला एलिमेंट ग्रेटर है तो डेफिनेटली स्वैपिंग इज पॉसिबल, राइट। तो अब इसमें 2 and 5, तो हम इसको स्वैपिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो 1 6 8, right? That's very easy. Now again I am going to compare with 5 to 1 again. Now where should I write? इधर या इधर, राइट, इधर लिखेंगे क्योंकि 5 कॉलम 4 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम, और जब ये 1 कॉलम हो जाएगा इसके बाद हम ऐसे देखेंगे इसका जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट आएगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका होगा। ये जब मैं लिखूंगा तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका होगा। जब 3 2 1 लिखने के बाद जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो तुरंत सॉर्टेड हो जाएगा। देखिए ट्राई टू नाउ अब इसके जो रिफ्लेक्शन होगा वो नेक्स्ट पास में होगा। ये हमने नेक्स्ट पास लिया, यहाँ लिखा 3, दिख रहा है, यस, 3 2 1 5, यहाँ को 1 5 6 8. Now I'm going to compare 3 to 2. 3 to 2, हाँ स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड, स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड। 3 2 मीन्स 2 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया, एंड 1 5 6 8. Now listen carefully. Now I am going to compare 3 1 3 1 3 1 के केस में क्या होगा, टेल मी। 3 1 के केस में विजिबल है, राइट। 3 1 में क्या हो जाएगा, स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड, स्वैपिंग होगी बट इसका जो आउटपुट होगा नेक्स्ट पास में होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 4 3 2 1 दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 2 1 3 5 6 8. नाउ लिसन केयरफुली, लिसन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इसका 2 1 से कंपेयर करने जा रहे हैं। अब 2 1 से देखिएगा, अभी मैं इनर लूप के अंदर हूं, एक्चुअली आउटर लूप है ये। इसको हम बोलेंगे i इज इक्वल टू 0, i इक्वल्स 1, i असाइन 2, i असाइन 3 एंड i असाइन 4। ये हमारे आउटर लूप होंगे, और ये अंदर जो होगा मेरा j असाइन 0, j इक्वल 1, j2, j3 एंड j4। यहाँ पे होगा J0, J1, J2, J3, J0, J1, J2, J0, J1 एंड J0, राइट। ये हमारे पास ये वेरिएबल्स ऐसे जाएंगे। तो आई मीन टू से कि जब हम लास्ट इनर लूप में होंगे, इनर लूप वाला क्या करेगा, उसको फाइनली सॉर्टेड में करके जब हम प्रिंट करेंगे, इंटरनली वो सॉर्टेड कर चुका होगा, और जैसे मैं बाहर जाऊंगा प्रिंट करूंगा तो सॉर्टेड ऑर्डर में हो चुका होगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, 2 1 को स्वैप करेंगे क्या हो जाएगा 1 2, एंड बाकी एज रिमेनिंग एलिमेंट विल राइट एज इट इज 1 2 3 5 6 8. दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स, राइट। नाउ लिसन, हाँ, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये मेरा ये अभी इनर लूप में काम चल रहा है। जब हमारा लूप दोनों लूप कंडीशन फेल हो जाएगा तब हमारे बाहर आने के बाद ये इंटरनली सॉर्टेड कर चुका होगा, राइट। तो लिसन केयरफुली, हम इस
प्रोसेस को करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ कोड लिखने और इसी कोड को हम एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ले इसको अनकंपाइलर आल्सो। तो नाउ अब ये जो वेरिएबल हमने एज्यूम किया है उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कोडिंग कर रहे हैं। तो नाउ लिसन केयरफुली। हाँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे हम लूप चलाने जा रहे हैं। फॉर i is equal to what? I is equal to 0, i is equal to 0 एंड यहां पे मैं ऐसे करता हूं i प्लस प्लस। यू टेल मी i इक्वल टू 0 to 4। अच्छा, प्लस प्लस चल रहा है ना, 0 1 2 3 4, डेफिनेटली प्लस प्लस चल रहा है, तो हमने प्लस प्लस कर दिया। नाउ यू थिंक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर i का लूप कहां तक चल रहा है? i का लूप चल रहा है 4 तक। गॉट माय पॉइंट? लेकिन 4 तक चल रहा है, एलिमेंट्स कितने थे? 6 एलिमेंट थे, राइट? अगर मेरे पास एलिमेंट 6 है तो नंबर ऑफ पासेस कितने हो रहे हैं? 5। 1 2 3 4 5 पास। बट i की वैल्यू 0 चल रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, इट मींस 4 तक चल रही है। i is equal to 4, n is equal to 6, then i is equal to 4। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर मेरे पास अगर 6 है तो ये कहां तक चल रहा है? 4 तक चल रहा है। तो अगर n है तो ये भी क्या होगा? n-2 तक चलेगा। और नो पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं i is less than r is equal to n-2। One more thing, in next video we will try to optimize the code।